गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में ऑर्थो इफेक्ट में के हाफ लेक्चर के आगे साउंड नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द कंप्लीट लेक्चर। ओके, नाउ कम टू द ऑर्थो इफेक्ट ऑन बेस। देखो, ऑर्थो इफेक्ट ऑन बेस बेसिकली व्हाट इज द बेसिक स्ट्रेंथ, इट टेंडेंसी टू डोनेट देयर H plus to electron deficient molecules. Okay, tendency to donate their electron pair to electron deficient molecules, that is, or electron acceptor, that is basic strength. Correct. Now in case of ortho substituted aniline, we can say this is aniline, or we have to compare its basic strength. What will happen? It will donate their electron pair to H plus. And see, this is protonation. What is protonation? Protonation means taking H plus. We know that H plus is also called proton because it have only one proton. That's why we call it protonation. Gain of H plus is called protonation. Is it correct? Okay, now come to the ortho substituted aniline. What will happen? Nitrogen will donate their electron pair to H plus. Before that, we know that NH2 and OH, NH2 and OH, these molecules do not show steric hindrance. We know that in case of carboxylic acid, we learned that NH2 and OH do not show steric hindrance. It shows hydrogen bonding. Is it correct? Okay. Now see, since these molecules are not bulky molecules, that's why it do not show steric hindrance. But we know that these molecules, carboxylic acid along with methyl. Now methyl show a steric hindrance, that is SIR effect. We know that CH3 show steric hindrance, but NH2 and OH do not. CH3 so because of their higher number of H hydrogen. As the number of hydrogen will increase, their size will increase. Because of their higher size, it will show a steric hindrance. Correct? But NH2 and OH will not show a steric hindrance. Now, see what happens when it donate their electron pair to H plus, it will form NH3. NH3 somehow similar to CH3, NH3 plus. Now number of hydrogen increase means its size will increase. Now this group will also show a steric hindrance. Is it correct? Now NH3 is similar to CH3. Size is almost comparable. That's why it will show a steric hindrance. Now because of this steric hindrance, what will happen? Molecules become unstable, as it will, because of their higher size, because of the higher size of these two groups, there will be a strong repulsion between these two groups. That's why these molecules become unstable. If it become unstable, what will happen? It will shift backward. It is correct. Reaction will be shifted backward direction. Then we can say its tendency to go forward will decrease because their stability is decrease. Is it correct? If we can say their tendency to go forward will decrease, it means its tendency to donate their H plus, its tendency to donate their electron pair to H plus will decrease. That is called protonation. We can say that their tendency for protonation will decrease. Is it correct? And why it is decreasing? Because of this CH3 group. And what this CH3 group is doing? It is providing him repulsion because of their steric hindrance. Is it correct? So because of the steric hindrance of CH3 group, the protonation tendency of NH3 group will be reduced. Correct? That is called steric inhibition of protonation. मतलब इसके प्रोटोनेट होने की टेंडेंसी, इस नाइट्रोजन के प्रोटोनेट होने की टेंडेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। किसकी वजह से? इस CH3 ग्रुप के वजह से। ये CH3 ग्रुप क्या लगा रहा है? ये अपने स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से इस वाले पे रिपल्सन लगा रहा है, इसलिए ये क्या हो जा रहा है? अनस्टेबल हो रहा है। क्लियर है? मतलब इसके प्रोटोनेट होने की टेंडेंसी को कौन रोक रहा है? स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ CH3 ग्रुप। क्लियर है? दैट्स व्हाट वी कॉल इट स्टेरिक।
steric inhibition of protonation. Is it correct? It's okay. Now see this, ortho-substituted aniline. Ortho-substituted anilines are weaker base than aniline in spite of any electronic effect. क्या कह रखा है ये? अगर मेरे से कंपेयर करने बोला जाए, दिस इज एनिलीन, दिस इज ऑर्थो-सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, तो इन कंपेरिजन इन बिटवीन द aniline and ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है वो हमेशा क्या होगा? एनिलीन से वीकर बेस होगा, क्योंकि इसका लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंडेंस ऑफ ऑर्थो ग्रुप। क्लियर है? तो जितने भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होंगे जहां पे SIP वर्क करेगा, उन सभी कंडीशन में क्या होगा? जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है वो एनिलीन से कम बेसिक होगा। करेक्ट है? तो देखो अब इसके सवाल सॉल्व करेंगे, तो सवाल में हमें क्या करने हैं जो आपने बेंजोइक एसिड में पढ़ा था। एट फर्स्ट विल अप्लाई ऑल द बेसिक इफेक्ट, देन वी विल राइट द ऑर्डर ऑफ बेसिक इफेक्ट लगाने के बाद वी विल राइट द order of basic strength, then we will apply the ortho effect on the base and only change will occur in between ortho substituted aniline and aniline. Is it correct? Now note it, then we will solve the question. Okay, now come to the question. See what we have to do. At first apply all the basic effect first, then decide their basic strength, then after we will apply ortho effect. Okay, now see the first question. What we have? The first one we have no effect. In the first one we have no effect. Now see one thing first, we have to compare the basic strength. So what we have to compare? We have to compare the charge density on this electron. Correct? Means we have to compare the charge density on this group, so we will not count its effect. इस ग्रुप का इफेक्ट इसी के ऊपर काउंट नहीं करने हैं। बच्चे बार बार गलत करते हैं, ये ग्रुप है और इसी का इफेक्ट काउंट कर, सर इस पे तो इसका भी n का भी प्लस सब लगाना है। अरे मुझे इसी के ऊपर सारे इफेक्ट कंपेयर करने हैं। क्लियर है? इसी के ऊपर सारे इफेक्ट लगाने हैं, तो इसका इफेक्ट काउंट नहीं करना है। क्लियर है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इसी के नाइट्रोजन की चार्ज डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बाकी सारे जो ग्रुप है उसके इफेक्ट को काउंट करना है, इसके ही इफेक्ट को इसके ऊपर काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? इसी के ऊपर इफेक्ट लगाना चालू कर देते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं करेंगे बार बार। बच्चे क्या करते हैं? बार बार जो ग्रुप दे रखा है उसी की चार्ज डेंसिटी पे NH2, N के चार्ज डेंसिटी पे NH2 का इफेक्ट लगाते रहते हैं। चलो देखो यहाँ पे तब क्या करने हैं, तो पहले वाले ग्रुप में कोई सा भी ग्रुप NH2 को छोड़कर और कोई नहीं है, तो NH2 के ऊपर किसी का कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा। इस वाले में देखो तो NO2 अवेलेबल है, NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है? -M। दूसरा कौन सा लगेगा? -I। और ऑर्थो पे है तो ऑर्थो इफेक्ट भी काउंट में आएगा, मगर इसको हमने क्या बोला? बेसिक के बाद लगाएंगे। तब दूसरे पे आ जाओ, इस वाले पे आओ, मेटा पोजीशन पे है, क्या यहाँ पे ऑर्थो लगेगा? नो, ओनली इंडक्टिव विल ऑपरेट, देन वी विल काउंट द इंडक्टिव। यहाँ पे देखिए NO2 इज एट पैरा पोजीशन, मींस हियर -M एज वेल एज -I विल ऑपरेट। करेक्ट? नाउ बेसिक स्ट्रेंथ में बताया था, all the plus effect will increase the basic strength and all the minus effect will decrease the basic strength. Correct? Now see, everyone have except one, rest 3 have minus effect. It's mean this is most basic among this. Correct? Then the first one will be most basic. Now we have to compare second, third and fourth. Now see, second and fourth have -M. We are not considering ortho effect. We just applying all basic effect. Okay, the -M and -M. Or here we have only -I. -M is dominating and -M will decrease basic strength. Since it is dominating, so it will decrease basic strength more than -I. Is it correct? तो जो -I जितना बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा होगा, इन दोनों का -M उससे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि सेकेंड और फोर्थ जो है वो थर्ड से
कम बेसिक है, करेक्ट है। तो फर्स्ट के बाद कौन आ गया, थर्ड आ गया। नाउ वी हैव टू कंपेयर सेकेंड एंड फोर्थ। नाउ कंपेयर सेकेंड एंड फोर्थ। तो सेकेंड वन में क्या दे रखा है, माइनस एम, यहां भी माइनस एम कॉमन आ गया। यहां पे क्या है, माइनस एम के साथ माइनस आई, इसका ज्यादा होगा, यहां पे माइनस आई कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है यहां पे कम है। सिंस डिस्टेंस इज लेस, सो माइनस आई ऑफ दिस ग्रुप इज मोर देन दिस वन। इज इट करेक्ट? तो अगर माइनस आई ज्यादा है तो डिक्रीज ज्यादा करेगा बेसिक स्ट्रेंथ को, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सेकेंड वाले से ज्यादा आ जाएगा, तो 4 देन सेकेंड। Is it okay? Now we have to apply ortho effect. So what we learn in ortho effect? We learn that ortho substituted aniline. Which one is ortho substituted? This one. Means second is ortho substituted. Aniline is less basic than aniline. Which is aniline? This is aniline. Which is already available. Now we have not to apply ऑर्थो इफेक्ट। बेसिकली ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई करने के बाद क्या आता है, इसके नीचे ही आता है। तो ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो भी क्या रहेगा, ऑर्डर सेम ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर है? बट अगर ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड इसके ऊपर आ जाएगा तो क्या करेंगे, हम ऑर्थो इफेक्ट लगाएंगे, और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या करना है हमको, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है उसको उठा करके एनिलीन के जस्ट नीचे रखने हैं। क्लियर है? क्लियर है? दो चीजें हैं, अगर बेसिक ऑर्डर लगाने के बाद हमारा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन एनिलीन से कम बेसिक आ रखा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ऑर्डर आया है वही क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। मगर अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन सारे बेसिक इफेक्ट लगाने के बाद ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन एनिलीन से ज्यादा बेसिक दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई करने के बाद उसको एनिलीन के जस्ट नीचे रख देंगे। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होगा, वो एनिलीन के जस्ट नीचे आ जाएगा। करेक्ट है? करेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट यहां भी अप्लाई कर रहे हैं, मगर ऑर्डर में कोई चेंज यहां पे नहीं होगा। समझ गए? नोट करें इस वाले को। सेकेंड क्वेश्चन पे आओ। सेकेंड वाले क्वेश्चन पे देखिए, फर्स्ट वन हैव नो इफेक्ट, करेक्ट। फर्स्ट वन हैव नो इफेक्ट। सेकेंड वन पे चेक करो, सेकेंड वन हैव माइनस आई। हेलोजेंस दे रखा है, पता है हेलोजेंस में क्या वर्क करता है, इंडक्टिव। क्या काउंट करते हैं हम लोग, ओनली इंडक्टिव। तो माइनस आई सीएल का माइनस आई। थर्ड वाले में देखिए, यहां भी क्या आ गया, माइनस आई, और यहां भी क्या आ गया, माइनस आई। यहां पे माइनस आई के साथ साथ ऑर्थो इफेक्ट भी अवेलेबल होगा। तो मगर पहला काम क्या करना है, ऑर्थो इफेक्ट को नहीं लगाने हैं, हमें क्या करने हैं, सारे बेसिक इंपैक्ट लगाने हैं। तो सी फर्स्ट वन हैव नो इफेक्ट, rest have minus effect. Since minus effect is available, so their basic strength will be less than first one. The first one will be most basic. Now compare. We know that inductive is distance dependent. As the distance increase inductive effect, extent of inductive effect और power of inductive effect क्या होगा, डिक्रीज होता चलेगा। क्लियर है? तो एक्सटेंट ऑफ इंडक्टिव विल डिक्रीज। तो इसका इंडक्टिव क्या है, सबसे ज्यादा, फिर इसका तो क्या आ गया यहाँ पे, फोर्थ वन, देन थर्ड वन, देन सेकेंड। करेक्ट? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई ऑर्थो इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो substituted aniline, which is this is ortho substituted aniline and this is aniline. So ortho substituted aniline should be less basic than aniline. Now see this is ortho substituted or this is aniline. Here we can see this is ortho substituted or this is aniline. So it is already available. Correct? By applying ortho effect, order will not change. Correct? Then this will be the correct order of basic strength. First 4, 3 and 2. Is it okay? Okay. Now come to the question number 3rd. Note it. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3rd को देखो। क्वेश्चन नंबर 3rd, फर्स्ट वन हैव no effect, second one have plus h as well as plus I, third one have plus I, fourth one have plus h as well as plus I.
Is it correct? And we know that all the plus effect will increase the basic strength. Now see, all the three have plus effect. So these three will be more basic than first one. Then first one will be least basic. Is it correct? First one will be least basic. Now this one have plus h, this one have plus h, and we know that plus h dominate over plus I. So if it is increasing the basic strength, so it will increase basic strength more than plus I. So this one will be less basic than second and fourth. Third one will be less basic than second and fourth. So put the third one here. Now we have to compare among in between second and fourth. Now see the second one, both have same plus h, because both have 3 plus h, 3 plus h. So both have same plus h. Now what we have to compare? We have to compare their inductive effect. Distance is less, so extent of inductive will be more in the second case. So basic strength of second will be more than fourth. So we will write fourth, second, then third, then one. It should be the order. Now what we have to do? We have to apply ortho effect. So what ortho effect say? Ortho effect state that ortho substituted aniline is less basic than aniline. So see, this one is the ortho substituted aniline. This is the, sorry, we write something wrong. Plus I. Second will have higher plus I, so basic strength of second will be more than fourth. Okay, second have more plus I as compared to fourth, so basic strength of second will be more than fourth. Now, ortho effect. By the ortho effect, ortho substituted. This is the ortho substituted aniline, and this is aniline. Ortho substituted aniline should be less basic than aniline, बट यहाँ पे देखो क्या है, ज्यादा बेसिक दे रखा है. तो अब क्या करने हैं, इसको उठा के जस्ट इसके नीचे रख देने हैं. 4 3 1 देन 2. दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर बेसिक स्ट्रेंथ. करेक्ट है, नोट करें. चलो थर्ड क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. Let me do question number third. Now see the question number 4. Question number 4. First one have no effect. You can see that no effect. Second one have minus h as well as minus I. Third one have only minus I. Fourth one have minus h as well as minus I. Correct. Now write the order. All the minus effect will reduce the basic strength. So first one will be most basic, then third one, then second and fourth. Second and fourth stronger minus I as compared to fourth one. The basic strength will be less than fourth one. 4 then second. This should be the order. Now apply ortho effect. Ortho substituted. Ortho substituted aniline is less basic than aniline. That is already given. Is it okay? Then that will be the correct order for basic strength. Okay. चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 5. सी दिस वन हैव नो इफेक्ट. दिस हैव प्लस m as well as minus I. This one have minus, okay. This one have minus I, and this one have plus m as well as minus I. Now see, second and fourth. Second and fourth have plus m. Plus m is dominating, so it will increase the basic strength. Third one have minus I, so it will decrease the basic strength. The third one, basic strength of third one will be less than aniline. So we can write here third one, then we will write first. Is it okay? Now we have to compare second and fourth. Second and fourth have plus m, so it will be more basic than first one. That's right. Now we have to compare in between second and fourth. So both have same plus m. Now what we have to compare? We have to compare inductive effect. Okay. This have minus I and this also have minus I. Distance is less, so extent of minus I in the second will be more than fourth, and minus I will decrease the basic strength. So fourth one will be more basic than second one. So we will write fourth one, then second, then first. Is it correct? Now we have to apply ortho effect because second one have ortho effect. Okay, now
If we apply ortho effect, what ortho effect state? Ortho effect state that ortho substituted aniline should be less basic than aniline. See, this one is, second one is the ortho substituted aniline and first one is aniline. So it should be less basic, but here it is given it is more basic. So what will we do? We will change it now, put it just below the first one. करेक्ट. क्या बताया है? बेसिक ऑर्डर लिखने के बाद ऑर्थो इफेक्ट में क्या करने हैं? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन को एनिलीन के जस्ट नीचे रखने हैं. तो क्या क्या हमने इसको उठाया और एनिलीन के जस्ट नीचे रख दिया. बाकी पूरा ऑर्डर क्या रहेगा? सेम रह जाएगा. क्लियर है? दिस विल बी द करेक्ट आंसर. इज इट ओके? क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा चेंज है, गलत लिख लिया यहाँ पे. हियर देयर विल बी CH3, अदरवाइज 1 and 2 विल बी द सेम. इज इट ओके? Now come to the question number 6. What will happen in question number 6? First one have no effect, second one have plus H and plus I, third one have plus H as well as plus I. Is it right? Plus effect will increase the basic strain. The basic strain of these two should be more than this one. Then the correct order should be 1, 2 and 3. 1, 2 and sorry. That's wrong. Plus H plus effect will increase the basic strain na. So second will be most basic because it have 3 plus H, it have 2 plus H, and here there will be no effect. 2, 3 than first. Is it correct? Okay. Now what we have to do? Now we have to apply ortho effect. See, ortho effect of this and ortho effect of this. This is methyl, this is ethyl, and we know that ethyl is bulky than methyl. Is it correct? Okay. Now, since these two are ortho substituted, it means according to ortho effect, its basic strain will be less than aniline. So what will we do? Aniline will be more basic. We have to take it and put below the 1. Now we are putting 2 and 3 below the 1 because both are ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड. तो दोनों का ही बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? फर्स्ट से कम होगा. अब इन दोनों में कंपेयर करने हैं. क्लियर है? अब इन दोनों में कंपेयर करने हैं तो ऑर्थो इफेक्ट दोनों का अलग अलग लग रहा है, तो एक्सटेंड ऑफ ऑर्थो इफेक्ट भी अप्लाई करना पड़ेगा. इसका एक्सटेंड ऑफ ऑर्थो इफेक्ट और इस वाले का एक्सटेंड ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, किसका एक्सटेंड ऑफ ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा? सेकेंड वाले का. एक्सटेंड ऑफ ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ को ज्यादा रिड्यूस करेगा. इसका कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ इस वाले से कम रिड्यूस होगा. तो क्या आ जाएगा? 2 and 3. क्लियर है? क्लियर है? आप इसको सीधा भी उठा के यहां पे रखते तो आंसर आ जाता आपका. क्लियर है? क्या करने थे? ऑर्थो सब्स्टिट्यूट को उठा करके जस्ट उसके नीचे रख देने थे, एनिलीन के जस्ट नीचे रखने थे. तो दोनों को इधर से उठाया और सीधा 1 के नीचे रख दिया. ये आंसर हमारा आ जाएगा. क्लियर है यहां तक? ओके. नेक्स्ट में आइए. क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 7, नो इफेक्ट प्लस एच. यहां पे 2 प्लस एच है, दो साइड से प्लस एच है, मतलब यहां पे 3 होंगे, यहां पे 6 होंगे. तो अकॉर्डिंग टू प्लस एच देखे तो 3, 2, देन देयर शुड बी 1. ये होना चाहिए था. अब क्या करने हैं? ऑर्थो इफेक्ट. ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का क्या करने हैं? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन शुड बी लेस बेसिक देन एनिलीन. मतलब ये तो गलत होने वाला. मतलब ये दोनों क्या है? 1 के नीचे आने. अब 1 के नीचे में 2 और 3 कौन किधर जाएगा? तो क्या करना? उसको फिर से कंपेयर करना पड़ेगा. क्लियर? जैसे लास्ट वाले में कंपेयर किया था, यहां भी कंपेयर करना पड़ेगा. यहां ऑर्थो इफेक्ट, यहां भी ऑर्थो इफेक्ट. यहां पे 2 साइड से ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, यहां पे 1 साइड से ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है. मींस एक्सटेंड ऑफ ऑर्थो इफेक्ट यहां पे क्या है? ज्यादा है. यहां भी सेंस एक्सटेंड ऑफ ऑर्थो इफेक्ट क्या था? ज्यादा था. तो यहां भी एक्सटेंड ऑफ ऑर्थो इफेक्ट इस वाले से ज्यादा है, तो बेसिक एक्सटेंड को क्या करेगा? ज्यादा रिड्यूस करेगा. क्लियर है? तब क्या आ जाएंगे यहां पे? 2 ज्यादा हो जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा. क्लियर है? इसलिए लास्ट सवाल में भी फर्स्ट के बाद हमने दोनों को कंपेयर करके बताया, इसलिए यहां पे भी आपको क्या है? दोनों को कंपेयर करके बताया. ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ क्या बताता है मेरा? एनिलीन से कम जाएगा. अगर 2 ऑर्थो इफेक्ट लग रहे हैं तो उन दोनों का फिर से एक्सटेंड क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा. क्लियर है? क्लियर है ये चीज? चलो
तो ये होना चाहिए, ये 7th का आंसर आ जाएगा, दिस वन इज द 6th का आंसर है, और ये 5 का आंसर है। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। फर्स्ट थिंग टेल मी वेदर देयर इज एनी ऑर्थो इफेक्ट और नॉट। यस ऑब्वियसली सेकेंड वाले में सर यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ऑर्थो इफेक्ट तो लगेगा। यहाँ पे दो CH3 ग्रुप है तो ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, लगना चाहिए नहीं, क्योंकि ये ग्रुप CH3 किससे अटैच है, नाइट्रोजन से। किससे अटैच है, नाइट्रोजन से। ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप अवेलेबल नहीं है, सो वी कैन नॉट सी एनी ऑर्थो इफेक्ट है। इज इट ओके? नो, वी हैव टू बेसिक, सारे के बेसिक कंसेप्ट लगाओगे इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वन, सभी में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या है, सेम है। क्या लगाना है यहाँ पे इस ग्रुप के अलावा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ड्यू टू बेंजीन सभी में क्या है, सेम है। उसके अलावा यहाँ पे कोई और ग्रुप अवेलेबल नहीं है, कोई और इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे 1 प्लस आई है, यहाँ पे क्या है 2 प्लस आई, और हमें पता है कि प्लस इफेक्ट विल इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। इट विल बी द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट है, नोट करें इसको। अच्छा, बाकी 3 सवाल हैं, ये भी एक बार सॉल्व कर ले। ओके, ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। चलो फर्स्ट वाले में देखो क्या करने हैं। फर्स्ट वन है प्लस आई एंड प्लस आई, सेकेंड वन वी हैव माइनस एम, थर्ड वन वी विल हैव प्लस आई ऑफ दीज टू मिथाइल ग्रुप। नाउ व्हाट अबाउट दिस NO2, विल इट शो माइनस एम? अब देखो, यू नो दैट कि अगर बल्कि ग्रुप अवेलेबल है, ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप अवेलेबल है, तो क्या होता है, इसका इसके ऊपर SIR लगेगा। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि अब बेसिक स्ट्रेंथ में आए तो ऐसा SIR भूल जाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भूल जाएंगे, सारे इफेक्ट को याद रखने हैं। तो ये क्या है, इसका इस ग्रुप पे SIR लगेगा, मतलब SIR की वजह से इसका इसके साथ रेजोनेंस क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। अगर इस ग्रुप का इसके साथ रेजोनेंस ब्लॉक हो गया तो क्या मीजोमेरिक पॉसिबल है क्या? मीजोमेरिक क्या होता है, रेजोनेंस का ही एक स्पेशल कंडीशन है। करेक्ट है। तो अगर इसने, इन दोनों ग्रुप ने इसका रेजोनेंस ही ब्लॉक कर दिया तो इसका इस ग्रुप पे माइनस एम लग पाएगा क्या? नहीं लगेगा। क्लियर है? तो क्या ऑपरेट होगा इसका, सिर्फ माइनस आई। क्यों नहीं ऑपरेट कर पाए, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों ग्रुप के बीच क्या लग रहा है, SIR लग रहा है। क्लियर है? समझा ये चीज? तो इन दोनों ग्रुप में क्या लगेगा, SIR लगेगा इन दोनों के बीच, इसके ऊपर नहीं लग रहा है SIR, इन दोनों के बीच SIR लग रहा है, क्योंकि ये भी बल्कि ग्रुप है, ये दोनों भी क्या है, बल्कि ग्रुप है। क्लियर है? तो इसकी SIR से क्या हो रहा है, इसका रेजोनेंस बेंजीन चेन के साथ ब्लॉक हो जा रहा है, और उसके वजह से हमें आज का माइनस एम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो क्या लगेगा, ओनली माइनस आई। नाउ इन दिस वन व्हाट विल वी हैव माइनस एम, क्योंकि यहाँ पे इस ग्रुप पे कोई SIR नहीं लग रहा। क्लियर है? साथ ही साथ इसका क्या लग रहा है, प्लस एच एंड प्लस एच, एंड इसका भी प्लस आई, इस वाले का भी प्लस आई, उसके बाद इसका क्या लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट भी लगेगा। क्लियर है? तो चलो अब कंपेयर करके देखो, दोनों फैक्टर यहाँ पे इंक्रीज करने वाले हैं, यहाँ पे डिक्रीज करने वाला फैक्टर यहाँ भी क्या है, डिक्रीज कर, क्योंकि माइनस एम डोमिनेट करता है। क्लियर है? ये भी डिक्रीजिंग फैक्टर, ये भी डिक्रीजिंग फैक्टर। तो अब क्या करें, इन दोनों में कंपेयर करें, फर्स्ट एंड थर्ड में। तो फर्स्ट क्या है, ज्यादा आ जाए, क्योंकि थर्ड के पास क्या है, एक माइनस आई भी है। क्लियर है? तो फर्स्ट ज्यादा होगा, फिर कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नाउ वी हैव टू कंपेयर सेकेंड एंड फोर्थ के बीच में। क्लियर है? तो देखिए NO2 और NO2 का इफेक्ट क्या हो गया, सेम, दोनों क्या करेगा, डिक्रीज, सेम एक्सटेंट से डिक्रीज करेगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब प्लस एच से देखे तो इसका इससे ज्यादा होना चाहिए, होना चाहिए, फोर्थ का इससे ज्यादा होना चाहिए। क्या लग रहा है, प्लस एच। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो प्लस एच अगर लगा के देखो, तो अभी सिर्फ इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूं, फोर्थ एंड थर्ड, फोर्थ एंड सेकेंड में। तो प्लस एच की वजह से, प्लस एच एंड प्लस आई की वजह से फोर्थ का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सेकेंड से ज्यादा होगा। ये सारे के सारे हमारे बेसिक कंसेप्ट लग गए। अब हम क्या लगाएंगे, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन, और यहाँ पे क्या लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट भी लग रहा है। तो ऑर्थो इफेक्ट से इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एनिलीन से कम हो जाएगा। क्लियर है? ऑर्थो इफेक्ट से क्या होगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ इस वाले से कम हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 देन 4। करेक्ट है?
तो 2 क्या है यहाँ पे -m, थर्ड से कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 देन 4। इज इट ओके? करेक्ट है यहाँ तक? चलो इस वाले में आ जाओ, यहाँ पे ग्रुप्स देखें तो देखो इस वाले में सभी के पास क्या है, ऑर्थो इफेक्ट अवेलेबल हैं। फर्स्ट वाले को छोड़कर ऑल ऑफ देम हैव ऑर्थो इफेक्ट एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन, पता है मेरे को। तो इन सभी में सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर है। अब इन सभी में कंपेयर करें, ऑर्थो इफेक्ट क्या है, सेम है सभी में, ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाएगा। क्लियर है? तो अब क्या करने हैं, जो बेसिक इफेक्ट का ऑर्डर है उसी से आ जाएगा हमारा, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से कोई चेंज नहीं होगा। तो पहले हम बेसिक इफेक्ट लगाए, -i, यहां पे -m, देन -i, यहां पे +h और +i, और यहां पे +m एंड -i। तो यहां पे -i, -m, +h, +m सबसे डोमिनेटिंग होता है, बेसिक स्ट्रेन को सबसे ज्यादा करेगा। क्लियर है? तो मैं सिंपल ऑर्डर लगा के लिखता हूं, बेसिक ऑर्डर लगा के लिखता हूं, पहले बेसिक ऑर्डर लगा के लिखता हूं। तो यहां पे नो इफेक्ट। क्लियर है? लास्ट आंसर में ये सबसे ऊपर आएगा, मगर हम जिस ऑर्डर से कर रहे थे हम उसी से करके देख रहे हैं। यहाँ पे नो इफेक्ट, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो इन दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ इस वाले से कम। क्लियर है? यहाँ पे +m +h, यहाँ पे +m, दोनों का बेसिक इफेक्ट इस वाले से ज्यादा। +h +m में कौन डोमिनेट करता है, +m डोमिनेट करता है। देन द फिफ्थ वन विल बी मोर बेसिक देन फोर्थ वन। करेक्ट है? fifth one will be more basic than fourth one will be more basic than first one। अब इन दोनों में कंपेयर करो, it have -i, it have -m is dominating and it is decreasing factor, it will decrease more than -i, then -i will come before -m। is it correct? this should be the order। अब क्या बोला है इन्होंने कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, तो सी these two are also ortho substituted and these two are also ortho substituted, these two are already below aniline। करेक्ट है? ये दोनों पहले से ही 1 के नीचे है, एनिलीन के नीचे है। these two should be less than aniline, बट यहां पे क्या ज्यादा दे रखा है, अब क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे लेकर के आने हैं। अब इसके नीचे लेकर के जाने हैं तो मुझे ये तो पता है कि ये दोनों जो है 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। क्लियर है? 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, बट 4 एंड 5 में कौन सा पहले आएगा, तो हम किसके पास जाएंगे, ऑर्थो इफेक्ट के पास जाएंगे। ऑर्थो इफेक्ट हमने क्या बोला, दोनों के पास सेम ऑर्थो इफेक्ट है, कंपेरेबल ऑर्थो इफेक्ट है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। साइज का ग्रुप क्या होगा, सॉरी ग्रुप का साइज क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा यहाँ पे। तो क्या लगाने अब यहाँ पे, तो सिंपल जो बेसिक इफेक्ट है उसी को लगाने हैं। तो बेसिक इफेक्ट से कौन पहले आया था, 4 पहले आया था, और सॉरी 5 पहले आया था, 4 बाद में आया था। तो क्या करोगे यहाँ पे 5 देन 4, इट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। अच्छा सवाल है ये, सोच के देखे इस वाले सवाल को, क्या कर सकते हैं। तो देखो पहले वाले में जो लोन पेयर है, क्या ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, क्या नहीं है। क्लियर? क्योंकि इसका पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रखा है वो दोनों प्लेन में होंगे, तो ये जो लोन पेयर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएगा। ये सवाल कितनी बार कर रखा हूं इस टाइप के सवाल। तो ये लोन पेयर क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन में है, बाकी सारे पी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ये चीज? तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो मतलब इसके डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया, पहला वाला हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करो, तो यहां पे देखो ये एरोमेटिक तो है, मगर ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब एरोमेटिक का एक पार्ट है, इसके वजह से ये मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक नहीं है। मगर इस लोन पेयर को देखो, इस लोन पेयर की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या है, एरोमेटिक है। अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट भी करता है तो भी ये मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, एरोमेटिक रहेगा। बट अगर इसने डोनेट कर दिया तो ये मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक नहीं रह सकता। क्लियर है? तो ये लोन पेयर की वजह से ये क्या हो रहा है, एरोमेटिक, तो इसका लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? तो इसके बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इस वाले से ज्यादा आ जाएगा। करेक्ट है? देन दिस वन विल बी द
करेक्ट आंसर। नोट कर ले ये वाले। ओके।